الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب صغریٰ یعنی جو قوموں پر پچھلی عذاب آئے ہیں وہ کس وجہ سے آئے، کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے رحمان الرحیم ہونے کے باوجود ان لوگوں کو اس طرح سے تباہ کیا، ختم کیا۔ اس کی ایک مین وجہ یہ نظر آتی ہے، قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے نمائندے بھیجے ہیں وہ نبی بھی کی شکل میں بھی آئے ہیں، رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق واضح ہے سب لوگوں کو۔ بے شک نبی تو قتل ہوئے ہیں لیکن رسول کوئی قتل نہیں ہوا۔ بے شک جب قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانی اور اپنی منمانیوں کی وجہ سے اپنے رسولوں کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئی ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو بچایا اور ان قوموں کو تباہ کر دیا۔ ایک مین وجہ یہ تھی کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ سارے اللہ رب العزت کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ انہیں کسی قوم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے ہوتا، نہ کوئی مال، نہ کوئی کسی قسم کی شہرت۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کی وجہ سے آتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ بات بالکل ناپسند آ جاتی ہے اس وقت قوم کی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو نہ مانے اور اس کے بعد پھر ان رسولوں کو، اس نمائندے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے۔ جی، یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے نجار صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ جو استہزاء ہے، مذاق اڑانا اپنے نبی کا یا رسول کا، اور یہ کہنا کہ ہمارے پاس تو مال و دولت ہے، جاہ و حشمت ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، اور نبی کے جو پیروکار ہیں یہ بہت پچھڑے ہوئے، غریب، عموماً پسماندہ طبقہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ آپ تم پر ایمان لائے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر کسی کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج سکتے تھے، ہمارے جیسے ایک شخص کو ہی کیوں؟ تو یہاں یہ بھی سوال آتا ہے کہ وہ استہزاء کرتے تھے اپنے نبی کا۔ جی، مذاق بھی اڑاتے تھے، باقاعدہ ٹارچر کرتے تھے، ذہنی ٹارچر بھی، اور بہت زیادہ لوگوں کو بھی ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ جو لوگ ان نبی پہ یا اس رسول پہ ایمان لاتے تھے ان لوگوں کو بھی ذہنی ٹارچر بھی کرتے تھے، ایکسپلائٹ بھی کرتے تھے بہت زیادہ۔ اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے جب اللہ نے نمائندے بھیجے، ان لوگوں کی مذاقیں اڑائی گئیں، ان لوگوں کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوئے، اپنے گناہوں پہ فخر کیا کرتے تھے، بلکہ بااعلان مطلب لوگوں کے سامنے وہ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے۔ قوم لوط کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ایسی بدکاری کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ جو اللہ رب العزت نے بالکل منع کی، اپنے نبی کو بھیج کے منع کرایا، مگر وہ نہیں مانے۔ پھر انہیں اس طرح سے پٹخیاں دی گئی ہیں، اس طرح سے انہیں تباہ کیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو کتنا غصہ تھا ان لوگوں کے اوپر۔ قرآن میں اس کی پوری وضاحت ہے، جب آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں قرآن میں ساری اس قوم کو کس طرح ختم کیا، کس طرح، بلکہ یہ تک لکھا ہوا ہے کہ نشان لگے ہوئے پتھر اترے تھے، وہ جو لگتے تھے ان کو اور وہ ہلاک کرتے تھے ایک ایک شخص کو، وہاں پہ خوب قوم لوط کے ایک شخص کو، اور پوری بستی اٹھا کر پلٹ دی گئی تھی۔ آج بحر مردار جس کو ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں وہ نمونہ ہے۔ اٹھا کے اتنی اونچائی پہ لے کے گئے ہیں اس بستی کو اللہ رب العزت، اور پھر پٹخایا جس سے کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے، مطلب بالکل ختم کر دیا گیا، دھسا دیا گیا۔ اور ایسی اور بھی قوموں کا جن الگ الگ قوموں نے الگ الگ طرح کے گناہ کیے ہیں، وہ سب گناہ جو پچھلی قوموں نے کیے ہیں جن پہ عذاب آیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں آج کے لوگ بھی ملوث ہوں گے تو آپ یقین کریں اللہ رب العزت انصاف والے ہیں، اسی طرح سے لوگ۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں انہی آیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو آ لیا تمہارے رب کے کوڑے نے، یعنی عذاب نے، اور تمہارا رب جو ہے وہ طاق میں ہے، ان ربک لبالمرصاد، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا انتظار ہے کہ تمہاری سرکشی، نافرمانی حد سے بڑھے تو میرے عذاب کا کوڑا پڑے گا۔ تو یہاں ہم اپنی امت مسلمہ کا جب حال دیکھتے ہیں تو ہم بھی کچھ مختلف نہیں ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود کبھی نہیں چاہتے عذاب دینا۔ اللہ تو قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں۔ بے شک اصل میں تو اللہ نے نبی بھیجے اس لیے ہیں، رسول بھیجے اس لیے ہیں تاکہ لوگ آگاہ رہیں۔ پچھلی قوموں کے جو قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ ایویں ہی نہیں بیان ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت نے آگاہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ ان تمام گناہوں سے بچتے رہو گے تمہارے لیے بہشت ہے، اور اگر تم نے وہ سب گناہ کیے تو تم کتنی ہی غلط فہمی میں رہو، کتنی ہی خوش فہمی میں رہو، تم لوگ بچو گے نہیں، کیونکہ اللہ انصاف والے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پچھلی قومیں جو تباہ کر دی گئیں قیامت کے دن اللہ رب العزت پہ انگلی اٹھائیں کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ تو یہ کیا اور یہ قوم یہ کرتی رہی اور آپ نے انہیں چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے آپ کو بے انصاف نہیں کہلائیں گے۔ بالکل مولانا صاحب، اور سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اس وقت تک ایک قرہ کو یعنی ایک بستی کو تباہ نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اپنی جانوں پر خود ظلم نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ کہتے تھے ہم تو اللہ تعالیٰ کے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
नाउज़ु बिल्लाह, और उसके चहीते हैं, और हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हम पर अजाब नहीं आएगा, अगर अजाब आया भी तो गिनती के चंद रोज़ आएगा। असल में जालिम कहा इसलिए गया है कि जुल्म कहते हैं अरबी में किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देने को। जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी जगह से हटाया, मतलब कमतर समझा, उसकी वैल्यू नहीं समझी, माज़अल्लाह, जो अल्लाह की एक वैल्यू है, कुरान में अल्लाह ने कहा ये वैसी वैल्यू नहीं समझते अल्लाह की जैसे अल्लाह हकदार है, तब इन्हें जालिम कहा गया। और जब तक लोग गुनहगार रहेंगे तब तक तो गाफिल हैं, लेकिन जब वो अपनी चीज़ों को हटाएंगे, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कमतर करना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मनसब से बढ़ा देना, ये भी जुल्म है। इसी तरह से कोई भी चीज़ दुनिया की आप उठा लें, उसे आप उसकी जगह से हटाएं तो अरबी में उसे जुल्म कहते हैं और उसके हटाने वालों को जालिम कहा जाता है। तो पिछली कौमों को जब जब कुरान ने जालिम कहा है, उन लोगों ने ऐसे काम किए हैं कि उन चीज़ों को उनके मनसब से हटा के या तो बढ़ाया या घटाया है, तो इस वजह से वो लोग जालिम हुए। इसीलिए कुरान ने जगह जगह शिर्क को भी जुल्म अजीम कहा है, इसी वजह से कि उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की साथ शरीक ठहराना वो बड़े गुनाहों में इसीलिए शामिल है, वो जुल्म में इसीलिए शामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं चाहते किसी भी चीज़ को उसके मनसब से या उसकी जगह से हटाया जाए। तो वो जो जालिम कौमें हुई हैं, इतना गुस्सा अल्लाह को आता है जुल्म पे। ये जुल्म नहीं है जो आज हमारे माशरे में जिसे जुल्म कहा जाता है, किसी ने किसी के साथ मारपीट कर दी, किसी की चोरी कर ली, किसी की डकैती डाली, ये जुल्म नहीं है, अक़ायद में ये गाफिल है जी, अक़ायद में इन्हें कुरान ने, हाँ, इन्हें कुरान ने कहा है गाफिलीन। लेकिन जब ये लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को नहीं मानते और उनकी आयतों का इनकार करते हैं, बल्कि मजाक उड़ाते हैं, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया अभी कि नबियों का मजाक उड़ाते थे, जैसे नूह अलैहिस्सलाम तमाम नबियों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मजाक उड़ाते थे कि लो जी ये हैं वो जो अपने आप को नबी कहते हैं, काहिन, मजनून, तमाम लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। वो लफ्ज़ मुंह पे लाते हुए भी शर्म आती है और अफसोस होता है, लेकिन वो उन मजाक के एवज में, क्योंकि वो तो नुमाइंदे अल्लाह के थे, अल्लाह ने अपना आप उनकी प्रोटेक्शन की है, उन्हें बचाया है, बाकी सबको तबाह किया है। तो जालिमीन वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी जगह से हटा के उसके साथ शरीक करें या उसके अहकामात को पैरों तले रौंदने की कोशिश करें या उसके अंबिया को, उसके रसूलों को कत्ल करने की कोशिश। बिल्कुल मिजाज साहब, हम देखते हैं कि यहाँ ताइफ का वाक़या हमारे सामने, हज़रत आयशा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आपकी ज़िंदगी में सख्त तरीन दिन कौन सा था, आपने ताइफ के दिन का जिक्र किया था। तो ऐसे दर्दनाक जो है लोगों का रवैया या उनका जो दिल खराज वाक़यात हैं वो अंबिया रसूल के साथ रहे हैं, और इसी चीज़ ने हज़रत नूह को ये कहने पर मजबूर किया कि रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतज़िर। तो अब हम ये देखते हैं मजाज साहब कि अल्लाह ताला उस वक्त तक आफत नहीं कोई भेजता या उस वक्त तक अपने अजाब का कूड़ा नहीं भेजता जब तक कि सरकशी हद से ज़्यादा नहीं बढ़ जाती, पानी सर से ऊंचा नहीं हो जाता। लेकिन जहाँ तक उम्मत मुस्लिमा का सवाल है कि ये नीज़ तो नाबूद नहीं होंगे, यहाँ तक कि क़यामत आएगी, क़यामत कुबरा जिसे हम कहते हैं, लेकिन सरकशों पर अल्लाह का अजाब किसी न किसी सूरत में मुसल्लत होता रहेगा। अब हम अगर गुज़श्ता 2-3 दहाइयों का जिक्र करते हैं, हमने इराक़ ईरान की जंग देखी, हमने इराक़ की तबाही देखी, हमने शाम की बर्बादी देखी, हमने लीबिया का हाल देखा, हमने ट्यूनिस का हाल देखा, इसी तरह दीगर जो ममालिक इस्लामिया हैं उनका हाल देखा, उनमें जो ज़वाल की सूरत है वो हमारे पेश नज़र है। ये बतदरीज ज़वाल ये क्या दिखा रहा है कि क्या क़यामत करीब है, क़यामत कुबरा जिसे हम कहते हैं, जिसको क़यामत कहा गया है या अस्सा कहा गया है कुरान पाक में। असल में बात यह है कि जिस तरह से अंबिया को भेजा गया है, इसी तरह से उम्मतों की भी एक जिम्मेदारी डाल के भेजी गई है। कुरान ये कहता है हमारी उम्मत के बारे में, जो इस टाइम चल रही है उम्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बारे में कुरान ये कहता है कि तुम्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया है कि तुम इन्हें लोगों को बुराई से रोको, अच्छाई की तलकीन करो। जिस चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस काम के लिए पैदा किया है, अगर वो काम ना करे तो वो भी जुल्म है। अब आप देखें कि अगर आप किसी फैक्ट्री में देखें, आप हर फैक्ट्री में कोई ना कोई प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट उनका बनता है, अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़राब हों और जो उनका मकसद पूरा ना कर रही हो तो उन्हें स्क्रैप में डाला जाता है। तो जब अपना मकसद पूरा ना करे कोई भी कौम तो उसे स्क्रैप में डाला जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी आप जिनका आप जिक्र कर रही हो, सगीरा जो मतलब बड़े जो अजाब, अभी छोटे छोटे अजाब जिन कौमों को आ रहे हैं, हाँ क़यामत सुगरा, तो वो उस वजह से आते हैं कि इज्तिमाई मौतें आप देखो ज़्यादातर मुस्लिम ममालिकों में इसी वजह से होती हैं कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी से हटे हुए हैं। इन्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया था कि ये बुराइयों से रोकें लोगों को, अच्छाइयों की तलकीन करें। ये खुद बुराइयों में मुलविस हो गए पूरी दुनिया कमाने में, बल्कि इन्हें आखिरत के लिए खुद ये कुरान जिक्र करता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए आखिरत बनाई है, तुम्हें अपने लिए बनाया। बिल्कुल, यहाँ हम देखते हैं मजाज साहब कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम नाफरमानी करोगे, सरकशी करोगे, तो मैं तुमको जालिमों को तुम पर मुसल्लत कर दूंगा। एक जगह और ये बात कही है कुरान में कि मैं तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आऊंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। बिल्कुल। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, अगर हम उस मकसद को पूरा नहीं करते हैं
تو آپ دیکھیں جس طرح کے ہلکے ہلکے عذاب، آپ پورا عذاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی کہ پوری کی پوری امت تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس طرح کی جو اجتماعیت موتیں آپ اجتماعی موتیں دیکھتی ہیں جگہ جگہ ملکوں میں، اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ لوگ اپنا جو ٹارگٹ اللہ رب العزت نے دیا تھا، جو مشن دیا تھا، اسے پورا نہیں کر رہے۔ اگر یہ لوگ آج بھی دعوت کے کام کو، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہے، برائی سے روکنے کے لیے لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنے کے لیے، اس پہ آ جائیں، تو آپ یقین کریں بالکل اللہ تو وہی ہے جو صحابہ کرام کا اللہ تھا، ہم لوگ بدل گئے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج بھی اللہ اپنی مدد نہ بھیجے فرشتوں کے ذریعے۔ اگر ہم لوگ اللہ کے احکامات پورے کریں، ان کے نبی کے راستے پہ چلیں، ان کے نبی کی مانیں، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، اللہ کو منانا ہے، مین مقصد مومن کا یہ ہے۔ کیا بات ہے مجاز صاحب، یہاں قوم یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ عذاب کی بددعا کر کے یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے، قوم نے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی، حضرت یونس علیہ السلام گرفت میں آ گئے۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ ایک نبی کی بددعا کو بھی رد کر دیا جبکہ قوم نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ یہی تو ہے اصل میں، قرآن یہ سکھاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں، اللہ نے انہیں بچایا ہے، لیکن اگر کوئی قوم اللہ رب العزت سے دل سے معافی مانگتی ہے اور ایڈمٹ کرتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، تو وہ بھی اللہ رب العزت کی اتنی رحمان الرحیم والا معاملہ ہے، اتنی کریمی ہے کہ اسے قوم کو بچا لیا۔ ایک ہی واقعہ ہے جو آپ ذکر کر رہی ہیں، اور تمام قوموں کے لیے جو فیصلہ اللہ رب العزت نے عذاب کا کیا تو وہ ٹالا نہیں، لیکن اس قوم کی انکساری، اس قوم کے اندر ایڈمٹ کرنا اپنے گناہوں کو، ماننا کہ ہم ہی ظالم ہیں، اسے اللہ رب العزت نے قبول کر کے اسے ٹال دیا، دکھانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو فیصلہ میں کر دوں میں اسے ہٹا نہیں سکتا۔ پھر اللہ کہاں ہوا؟ اللہ وہ ہے جو فیصلہ کرے اور چاہے تو اسے ہٹا بھی دے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر اللہ رب العزت سے آپ دل سے معافی مانگتے ہو، ایڈمٹ کرتے ہو کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ دیکھو نا، آدم علیہ السلام سے کتنی بڑی نافرمانی ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہیں صرف ان کی ندامت، دل میں ندامت، ابھی تو لفظ بھی نہیں آتے تھے، قرآن یہ کہتا ہے لفظ سکھائے پہلے توبہ کے، اس کے بعد توبہ قبول کی، اس کے بعد پھر نبی بنا دیا۔ اللہ رب العزت کو توبہ اتنی پسند، لیکن ہم اگر اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ سے توبہ کر کے پلٹ آئیں تو اللہ اب بھی وہی ہے، انشاءاللہ یہ قوم پھر فلاح پا جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں جو ہمارے سامنے نمونے ہیں مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں سونامی ہے، زلزلے ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، آسمان پر غبار طاری ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کس چیز کے لیے دعوت دیتی ہیں کہ اے بنی آدم، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا در کھلا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ توبہ کہتے ہی پلٹنے کو کہتے ہیں توبہ۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ در کھلا ہے، یہ وجہ یہی ہے، اللہ رب العزت دکھا رہا ہے، یہ ہلکے ہلکے ٹیلر ہیں، سمجھے آپ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ رب العزت دکھا کے چاہتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ خود اپنا انٹروڈکشن کس طرح کراتا ہے شروع میں؟ رحمان الرحیم۔ تو جو رحمان الرحیم ہو وہ کسی طرح سے بھی اپنے بندوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے بار بار ہمیں چونکاتا ہے ایکسیڈنٹل کہ کسی طرح سے چونک جائیں اور بھی پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجیں، اس کے بعد آج بھی اب نبی نہیں آئیں گے، کتاب نہیں آئے گی، لیکن پچھلی کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو پچھلی تمام قوموں کا ہمیں معاملہ ہی ملتا ہے کہ ہمیں ان گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، ورنہ اللہ تو وہی عذاب بے شک، اور اسے انتظار رہتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کا۔ مجاز صاحب، 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، آئیے مل کر بات کریں۔ پہلے خالدہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی خالدہ، سیکری سے بول رہے ہیں۔ خالدہ بہن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن بتائیے۔ میرے جو شوہر اصل بات ضد بہت کرتے ہیں، نظام الدین نام ہے ان کا، اور میرا کہنا نہیں مانتے ہیں، اتنے ضد کرتے ہیں بہت زیادہ۔ ہر بات خالدہ صاحبہ رکیے 1 منٹ، آپ نے کہا آپ کا کہا نہیں مانتے، کس بات پر آپ کا کہا نہیں مانتے؟ کوئی سا بھی نہیں کہنا مانتے، ایک بھی گھر میں بھی کچھ بات ہو تو وہ بھی نہیں مانتے، کوئی سا بھی کہنا نہیں مانتے ہیں، یعنی اپنی منمانی کرتے ہیں، ضد ان کی کرتے ہیں، بہت ضد کرتے ہیں، ضد پوری کرتے ہیں۔ تو آپ ان کی مان لیا کیجئے خالدہ، جی آپ ان کی مان لیا کیجئے۔ جی ہم تو مانتے ہیں، ہم سب کچھ ہم کہنا مانتے، میرا نہیں مانتے بالکل، کوئی بھی ضد پوری کرتے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی آپ کا کہا بھی ماننا چاہیے۔ جی کتنے بڑے بڑے بچے ہیں؟ نہیں، ان کے شوہر کی بات ہو رہی ہے۔ جی ایک دم سے ٹھیک ہے خالدہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ گلشن صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گلشن صاحب۔ گلشن صاحبہ، کچھ نیٹ ورک میں پرابلم ہے، آپ کی آواز پوری طرح نہیں پہنچ رہی، ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال خالدہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ مجاز صاحب بہت تفصیل سے اس پر رہنمائی فرمائیں گے۔ یہاں لے رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। दो कॉलर्स हमारे साथ हैं, मसरत साहिबा और जुबैर साहब। मसरत साहिबा, पहले आप बताइए सवाल क्या है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल ये है कि जैसे हम वजू बनाते हैं और हमारे हाथ पे चोट लग जाती है, हम बैंडेज लगा लेते हैं, और बैंडेज हटाना ना वो नहीं होता है, मतलब इसको हटाया जाए तो हमारा वजू हो सकता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हम लेडीज होते हैं तो लोग बोलते हैं ना वजू में और नमाज में उनको बालों में 3-4 बल डालने चाहिए। ये आप अपना दूसरा सवाल दोहराइए। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम वजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि लेडीजों को ना अपने बालों में 2-3 बल लगाने चाहिए ना चुटिया बांधने के लिए, हाँ। मतलब बाल। और तीसरा सवाल ये है, मैं अपने बच्चों के नाम से मायने जानना चाहती हूँ। मेरे बच्चे का नाम है, एक का नाम शादान है, शादान, और दूसरे का नाम सानिया। दूसरे का नाम क्या बताया? सानिया। अच्छा, पहले सवाल के ताल्लुक से एक छोटी सी बात है, आपका जख्म गहरा है, अगर आप बैंडेज हटा देंगी तो क्या खून बहने लगेगा? नहीं, खून नहीं, जैसे बैंडेज लगा रखा है, कहीं जख्म हुआ ना ठीक तो हम वजू बना सकते हैं बैंडेज के ऊपर, मतलब अगर पानी हमारी बॉडी से पानी नुकसान अगर करे तो ठीक है, इसके बारे में जरूर बताएंगे। मुजाहिद साहब, जुबैर साहब, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मौलाना साहब को भी मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जुबैर भाई। मौलाना साहब से मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे घर में और मस्जिद में थोड़ा सा डिस्टेंस हैगा, तो जैसे मैं फजर की नमाज मस्जिद में अदा करके आता हूँ और इशराक की नमाज जैसे ऑफिस भी जाना होता है तो मैं घर में आके अदा करता हूँ, तो दोनों सूरतों में सवाब का क्या रहेगा, मतलब मस्जिद में पढ़ना इशराक की नमाज या घर में पढ़ना? और दूसरा सवाल मेरा ये हैगा मौलाना साहब से, जैसे मेरी फजर की नमाज अगर कज़ा हो जाती है और मस्जिद नहीं जा सकता, मैं घर में ही नमाज अदा कर रहा हूँ, तो फर्ज से पहले सुन्नतें पढ़ना चाहिए, उसके बिना मतलब नमाज फर्ज की होगी नहीं होगी? और एक छोटा सवाल और है, जैसे अभी मेरे बच्चे का इंतकाल हुआ है 7 महीने पहले, तो कुरान के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कब्रिस्तान में जाने का मतलब कैसे जाना चाहिए और कलाम पाक हमें क्या बताते हैं इसके बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सबा साहबा, आप बताइए सवाल क्या है? बहन सबा सुन पा रही हैं हमें? सबा से राब्ता नहीं। जुबैर साहब के। जी सबा, फरमाइए। कोई सवाल है तो बताइए, नाम के माना तो हम बाद में आपसे जानेंगे, पहले कोई सवाल अगर है तो बताइए। मुझे सूरह बकरा के बारे में पूछना था, हम 3 साल से पढ़ रहे हैं वैसे। जी हेलो जी सबा, अपना सवाल जारी रखिए। हम 3 साल से जैसे सूरह बकरा पढ़ना है तो उसे क्या कंटिन्यू पढ़ सकते हैं या फिर उसे गैप करके पढ़ना चाहिए? ठीक है, अब नाम बताइए। नाम सूबिया के और रफत के मायने मालूम करने थे। सोबिया और रफत, नाम तो हम प्रोग्राम के आखिर में इंशाल्लाह शामिल करेंगे, बाकी आपके जो सवाल है उसको ज़रूर हम मुजाहिद साहब से जान लेते हैं। मुजाहिद साहब, पहले तो खालिदा साहिबा का सवाल, जो हमारी पहली कॉलर है, बहुत नाइंसाफ़ी है कि शौहर अपनी बात मनवाए और बीवी की एक बात भी ना माने, तो क्या किया जाए? असल में शौहर और बीवी जो हैं ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। दीन से दूरी की वजह से ये मामले आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी बीवियों के साथ कैसे थे, अगर हमें मालूम हो तो हमें भी अपनी औरतों के हकूक़ देने में आसानी हो जाए। असल में शौहर जो हैं वो अपने आप को ताकतवर समझ के और हाकिम समझ के इस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं औरतों का आजकल, जो नाइंसाफ़ी है। हालांकि औरतों के लिए भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा के गए हैं कि अगर मर्द का जिस्म खून और पीप से भरा हो और औरत ज़बान से चाटे तो मर्द का हक़ अदा नहीं होता। एक बार फरमाया कि अगर सजदे का हुक्म होता तो औरत को होता अपने मर्द को सजदा करे। लेकिन औरत के बारे में भी मर्दों को ये सोचना चाहिए कि अपने घर बार, अपने बहन भाई सब कुछ छोड़ के आ जाती है, सब कुछ अपना एक मर्द को सौंप देती है, तो उसकी ख्वाहिशें, उसकी तमन्नाएँ, उसकी ज़रूरतें, उसकी जो भी ज़रूरत, जिस तरह की भी दुनियावी ज़रूरत हो, सब पूरी करने का कमिटमेंट किया होता है निकाह के टाइम। लेकिन मर्द क्योंकि दीन से दूर हैं, कुरान नहीं पढ़ते, हदीसें नहीं पढ़ते, हुजूर की ज़िंदगी सामने नहीं है, इस वजह से अपनी औरतों के साथ ये इस तरह का जुल्म करते हैं। लेकिन इनकी जो सवाल है उसमें इन्हें ये करना चाहिए कि कुछ तो अपने हस्बैंड की बात मान लिया करें और कुछ उनके ऊपर दम करें। एक जुमेरात की रात को, यानी अगले दिन जुमा जब हो, 1000 बार या वली पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरे हस्बैंड को मेरे मतलब का कर दें और मुझे उनके मतलब का कर दें। 2 नफिल पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे गिड़गिड़ाया करें कि अल्लाह इनके निकाह में आपने दिया है मुझे, इन्हें मेरे मतलब का कर दें, मुझे इनके मतलब का कर दें। एक जब वो सोते हुए हों तो सिराने की तरफ या शहीद 21 बार पढ़ के उनके ऊपर दम करें। पायतियों की तरफ 3-3 बार दुरूद आगे पीछे
21 बार सूरह इखलास पढ़ के उनके ऊपर दम करें, इंशाल्लाह 3-4 दिन में फ़र्क महसूस हो जाए इंशाल्लाह। और हम इंतजार करेंगे कि खालिदा साहिबा फोन करके हमें बशारत सुनाए, जरूर, ये खुशखबरी दे कि वाकई फर्क पड़ रहा है। नहीं, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा काफी। इंशाल्लाह। खैरुन्निसा साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? खैरुन्निसा साहिबा सुन पा रही हैं हमें? हाँ हाँ सुन रही हूँ। जी फरमाइए। वालेकुम अच्छा। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सवाल बताइए। मेरा सवाल था ये बाजी कि क्योंकि मेरे शौहर तो थोड़े दिन नहीं थे, फिर अभी आए, तो मैं थोड़ा सा बाजू वाले की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके घर में गई, तो वो आते समय मुझे देखने के बाद में मुझे बोले कि वो तू वहाँ पर आई कुछ करी नहीं क्या, कुरान को हाथ लगा फिर मुझे बात कर बोले, तो वो शक करते मुझे कर मैंने वो कुरान को मजबूरी में दी, फिर मुझे कुछ गुनाह होगा क्या? अल्लाह ताला उन्हें राह हिदायत दिखाई। तो बोहतान है मौलाना साहब, और बोहतान बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत बड़ा गुनाह है। असल में मामला यह है कि औरतों को भी ये बात समझनी चाहिए अपने मर्द के मिजाज के हिसाब से। अगर उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि पड़ोस में जाएं या किसी के साथ खड़े हों, अगर यहाँ तक बात है कि अगर वो अपने वालिद से और भाई से मना करते हैं मिलने के लिए, तब भी मना करने मतलब तब भी इन्हें रुकना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बात भी हुई है कि वालिद के पास एक हस्बैंड नहीं जाने देता था, तो हुजूर ने उन्हें यही बात फरमाई कि सब्र कर। उसके बाद डेथ के टाइम भी नहीं जाने दिया, तो हुजूर ने ये कहा कि तुझे अजर मिलेगा इस बात का, लेकिन तुझे अपने खामिन की बात माननी है। तो इन बहन को ये बात सोचनी चाहिए कि जिस तरह का मिजाज इनके हस्बैंड को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, इन्हें उनके हिसाब से अपना रवैया रखना चाहिए। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि इनके पॉजिटिव रवैये की वजह से वो चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मौलाना साहब, शौहर की अताअत और फरमाबरदारी लाज़मी है। बेशक, बेशक। अल्लाह के बाद जो है वो शौहर की अताअत बहुत ज़रूरी बेशक, है। बेशक। और एक सहाबी का वाक़या याद आ रहा है कि वो नाबीना थे, हज़रत आयशा और एक दूसरी अज़वाज मुतहरात में से एक दूसरी जो थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी, उम्मुल मोमिनीन। एक नाबीना साहबी आए, रसूल पाक ने कहा उनको हटने के लिए, उन्होंने कहा वो तो नाबीना है। रसूल पाक ने कहा तुम तो नाबीना जी, नहीं। जी, जी, तो जब बेशक। इतने हमारे पास सरी है, कामात मौजूद है, बेशक, बेशक। तो बहन यहाँ गलती आपकी है। मसरत साहबा का जो सवाल है मौलाना साहब, वो वजू में अगर बैंडेज लगी हुई है, पानी नहीं गुजर रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो ऐसी सूरत में क्या वजू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा वज़ू। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदों से बहुत मोहब्बत है, वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की किसी तकलीफ में उसके बंदे पड़ें। अगर ऐसी मजबूरी है कि बैंडेड के बिना अगर उन्होंने पानी लगाया तो ज़ख्म बढ़ जाएगा, तो किसी भी कीमत पे उन्हें जो है वो बैंडेड नहीं उतारनी चाहिए, बल्कि उसी पे हाथ फेर लें ऊपर, इंशाल्लाह मथा कर लें। उसका नियत असल तो अल्लाह तक नियत पहुँचती है। कुरान ये कहता है कि तुम्हारी नियत है और तुम्हारे अमाल मुझ तक पहुँचते हैं, बेशक। तो इसलिए इनकी नियत वज़ू की है। इंशाल्लाह अल्लाह को पता है इनकी मजबूरी का, अल्लाह कबूल अब ये करेगा। चोटी का क्या मसला है कि बाल खुले हों, जूड़ा बंधा हो, या चोटी में 2-4 बल पड़े हों, वजू के ताल्लुक से? जी, वज़ू के ताल्लुक से असल में ये बात है कि मसा जो है ना पूरे सर का मतलब 3/3 हिस्से का मसा होना चाहिए। तो जब बाल बंधे होंगे तो 3/3 हिस्से का मसा नहीं हो सकता, तो उस टाइम वो बाल खोल लें, उस टाइम मसा करने के बाद फिर अगर बांधने कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी। अब जुबैर भाई के सवाल बहुत अच्छे हैं कि फजर अगर मस्जिद में अदा की और इशराक घर में कर रहे हैं, तो सवाब के एतबार से क्या कमी बेशी होगी? कोई कमी पेशी नहीं होगी, क्योंकि असल में मस्जिदें जो हैं वो फ़र्ज नमाजों के लिए जमात के लिए हैं। बाकी तमाम नवाफिल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी मस्जिद में पढ़ते थे, अक्सर घर पे ही पढ़ते थे। तो घर पे नवाफिल पढ़ना ज़्यादा सवाब है बनिस्बत मस्जिद के। फ़र्ज नमाजें जमात के साथ मस्जिद में पढ़ना 26 गुना ज़्यादा सवाब है। बाकी तमाम जितनी भी सुन्नतें हों, नफिल हों, आप घर पे पढ़ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह ज़्यादा अजर मिलेगा। फजर की अगर नमाज कज़ा हो गई है तो सुन्नतों की अदायगी ज़रूरी है या सिर्फ फ़र्ज की अदायगी होगी? पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इस्लाम में क़ज़ा नमाज का तसव्वुर ही नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ क़ज़ा नहीं होती थी, ना कभी क़ज़ा पढ़ते। लेकिन 2 मजबूरी ऐसी हुई है, एक बार हुजूर सोते रह गए, तमाम सहाबा के साथ सफ़र में थे, तब नमाज क़ज़ा हुई है। एक बार भूल गए नमाज़ पढ़ना, काफिरों का पीछा कर रहे थे, तो उस टाइम इतनी आगे निकल गए जंगल में कि नमाज़ पढ़नी याद नहीं रही। तो ये 2 वजह, अगर इस वजह से इनकी नमाज क़ज़ा होती है तो ये नमाज क़ज़ा करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन फजर की नमाज क़ज़ा हुई है सोने की वजह से हुजूर की, तो पहले सुन्नतें पढ़ी हैं, उसके बाद फिर फ़र्ज़ पढ़ें। तो इसलिए सुन्नतें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हुजूर की एक हदीस से बात मिलती है कि तमाम जितनी भी फ़र्ज़ नमाजें हैं उनके बाद अहम तरीन नमाज़ों में फ़जर की सुन्नतें और रात की वितर है। बहुत शुक्रिया। आइए 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लें। शायदा साहबा, पहले आप बताइए सवाल क्या है? जी, आप सब लोगों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी, मेरा ये सवाल है, मेरी बहन छोटी बहन है, तो उसका शोहर ना बहुत ज़्यादा शराबी है और वो किराए के मकान में रहती है, तो ना उसको खर्चा देते ना उसको किराया देते। तो अभी जब वो प्रेगनेंट थी ना तो वो उसको छोड़ के भाग गए थे, 7 महीने का बच्चा था पेट में। तो अब जी उन लोगों ने उसका खर्चा कराया, उनके बच्चे नहीं होते, तो उन्होंने अपना बच्चा गोद दे दिया और सुबह 2 बच्चे पहले से ही हैं।
तो अब वो लोग ये कहते हैं तूने ना हमें बच्चा गोद दे दिया, तू तेरा से वास्ता खत्म, अब तू ना इसको दूध ना उसने दूध पिलाया था उस बच्चे को, तो कहते हैं अब उसको पता नहीं चलना चाहिए तू उसकी माँ है, तो उससे बिल्कुल रास्ता खत्म कर दे। तो वो कहती है ये कहाँ तक शरीयत में जाए, तो उसको शराबी पति अब दोबारा आ गया, अब वो यूँ कह रहा है कि मेरे को मेरा बच्चा वापस चाहिए। उनने बिगड़ पूछे दे दिया था क्योंकि खर्चा पानी सब उन्होंने कराया था, वो तो छोड़ के भाग गया था उनको। तो वो कहती है अब मैं क्या करूँ, उनने इस्तिखारा भी करा 2-3 दिन से, तो उसमें ये आ रहा है कि वो कहीं गई है और वहाँ पे खाना खा रही है, बच्चा उसकी गोद में है। इसका क्या कितने दिन मतलब? के लिए गायब हुई थी इनके husband? शाहिदा एक बात बताइए जी, अभी मिजाज साहब भी दरियाफ्त कर रहे हैं कि वो कितने दिन के लिए घर छोड़कर अपनी फैमिली को छोड़कर भागे थे? अरे वो तो समझ लो रहता नहीं है, 1 महीने रहता, 4 महीने गायब, 3 महीनों गायब। उनके निकाह में है या अलहदगी हो चुकी है? नहीं, साथ में रहते हैं, और ना उन्हें डिवोर्स का शब्द भी कह दिया कि जब मैं तुझे रखूंगा नहीं, ये वो, और उसके बाद भी वो उसके साथ आ जाता है, फिर उसको मारता है कूटता है, मेरे पापा को बंद करवा देते हैं, फिर आ जाता है, फिर 1 महीने रहता है, फिर 4 महीने गायब। ठीक है, ठीक है शायदा, आपकी तमाम बातें पहुंच गई, थोड़ा सा इंतजार। सिराज साहब आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीदी हमारे घर में ना लड़की को असरात हैं इसलिए रिश्ते नहीं हो रहे हैं घर को, ऐसा बोले हैं, असरात के लिए क्या करना, और दूसरा सवाल अच्छे रिश्ते आने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। और जुबैर भाई आपका तीसरा सवाल भी हमारे पास महफूज है। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ज़ुबैर साहब का सवाल बहुत अहम है। 7 महीने पहले इनका बच्चा वफात पा गया। अब ये जानना चाह रहे हैं कि कब्रिस्तान में जाने के लिए शरीयत क्या हुक्म देती है, या इसाले सवाब की अगर कोई सूरत हो तो उसके बारे में भी बता दें। असल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने की तलकीन की है और हौसला अफजाई की है। उसकी मेन वजह तो ये थी कि ताकि आपको अपनी मौत याद आए वहाँ कब्र देख के। बेशक सूरह फातिहा जो है वो जो फातिहा कहलाती है मुर्दों के लिए पढ़ने की, तो ये अपने बच्चे के लिए सूरह फातिहा पढ़ें कब्रिस्तान जाके 3 बार 7 बार जितना इनके पास टाइम हो, और 3 कुल पढ़ वो कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास 3 बार पढ़ लिया करें, क्योंकि एक हदीस से बात साबित है कि तिहाई कुरान की बराबर फजीलत रखती है। और आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लें और अपने बच्चे के लिए सवाब की नीयत से सब पढ़ लें। इंशाअल्लाह बिल्कुल जाया करें कब्रिस्तान, अपने बच्चे को याद भी करें, उसके लिए दुआएं भी करें। अल्लाह करे वो बच्चा जो इनका फौत हुआ है इनके लिए जन्नत का तोशा बन जाए। बिल्कुल, और ये वालिदैन की बख्शिश का सामान होती है जी इंशाअल्लाह। सबा साहब दरियाफ्त कर रही है, सूरह बकरा कैसे पढ़ी जाए, क्या रोजाना भी पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल सूरह बकरा रोजाना पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2.5 पारे की सूरत है, औरतों को बहुत सारे काम होते हैं, अपने बच्चे पालने होते हैं, अपने हस्बैंड के बहुत सारे हुकूक पूरे करने होते हैं, तो इसलिए इस तरह अपने ऊपर जबर नहीं करना। अगर पढ़ सकती हैं पढ़ें, अदरवाइज इस तरह तय कर लें हफ्ते में 1 बार, या तोड़ के पढ़ लें कि मैं 4 रुकू या 1 पाव पारा रोज़ पढ़ लिया करूँगी सूरह बकरा का, ये भी हो जाएगा। या फिर अगर इन्हें बहुत सूरह बकरा का शौक है, 3-4 लोग मिल के पढ़ लिया करें, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि पौन पारा 4 लोग पढ़ लें, तब भी ये पूरा हो जाएगा इस तरह से। लेकिन पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता कि डेली पढ़ना मना है। बहुत शुक्रिया। अब शाहिदा साहबा का जो सवाल है, वो शौहर जो है वो शराबी भी है, बीवी के अखराजात भी पूरे नहीं करता है, 1 महीने के लिए आता है फिर छोड़कर भाग जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि भाग जाता है, वाकई ये लफ्ज़ अपनी जिम्मेदारियों से भागना ये अखलाकी जुर्म है। और फिर यहाँ एक बच्चे का भी सवाल है जिसको इन्होंने किसी को दे दिया है गोद, अब वो अपना बच्चा मांग रहा है। अच्छा, यहाँ ये शर्त थी कि तुम ना इसे दूध पिलाओगी और ना इस पर जो है वो अपनी बल्दियत का दावा करोगी, ये क्या चीज़ है? असल में मामला यह है कि क्योंकि मैं वही जो बता रहा हूँ, हमारे माशरे में दीन से दूरी की वजह से मालूमात तो है नहीं, तो ये इस तरह के जो शौहर हैं उनके लिए कुरान ने औरत को एक ये छूट दी है कि वो खुला ले सकती है। लेकिन क्योंकि इतना मुश्किल हो गया है हमारा इन खुला वगैरह का लेना कि बहुत ज़्यादा पेचीदगी आ गई है, तो इसलिए ये औरतें परेशान होती हैं, पढ़ी लिखी होती नहीं, इन्हें मालूम ही नहीं होता कि हम किस तरह से खुला लें, ना इनके बड़ों को मालूम होता है। वरना ऐसे मर्दों को कहीं अगर कोई औरत फंस जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी छूट दी है, मर्द को दिया है कि वो तलाक दे सकता है, और औरत को खुला की छूट कुरान देता है। तो ऐसे मर्द के जिसके साथ ये रहना नहीं चाहती, या जो इस तरह के जुल्म करता है या हराम कामों में मुलविस है, तो इन्हें खुला लेनी चाहिए उससे, और उसके बाद फिर अपना सेपरेशन कर ले। जो बच्चा दूसरे को इन्होंने दिया है तो इस तरह का कमिटमेंट इन्हें करना नहीं चाहिए था, और जो कर लिया तो वाकई ये ठीक बात है कि ये अगर दूर रहे उस बच्चे से तभी वो उनके यहाँ रह सकता है, अदरवाइज ये भी उससे इन्वॉल्व हैं और वो भी, तो इस तो बच्चा भी जो है बहुत परेशानी में आ जाएगा। यहाँ कानूनी जिसको कहते हैं चाराजोई की जरूरत है, जी जी, या अपने बड़ों को दरमियान में शामिल करके कोई फैसला ले सकते हैं। नसरुद्दीन साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मैं नसरुद्दीन बोल रहा हूँ टीचिंग से। नसरुद्दीन साहब हमें सुन पा रहे हैं?
हेलो, जी नसरुद्दीन साहब फरमाइए। मेरा लड़का एक तो है सर मैडम जी 18-19 साल का, हाँ तो क्रिकेट में गया है, जी तो अभी 3 साल हो गया, अभी तो उसका कोई कामयाबी नहीं मिला। मैं तो बराबर सूरह बकरा भी पढ़ता हूँ, कुरान मजीद भी पढ़ता हूँ, 5 वक्त नमाजी भी। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर अभी बताएंगे मजाज साहब आपको किसी वजीफे वगैरह के बारे में। दुआएं जारी रखिए, थोड़ा सा इंतजार, खालिद भाई से बात कर रहे हैं, उनका सवाल लेंगे। जी ज़रूर इंशाल्लाह। जी खालिद भाई आप बताइए सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम पिछले मैं 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, करीबन 8 से 10 बार आपसे बात हो चुकी है। माशाअल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला ने इतना चेहरे पर नूर दिया है कि इसे कायम रखिएगा। आमीन मेरा आमीन। और एक गुजारिश है। जी खालिद भाई, जी जी सुन रहे हैं, फरमाइए। जी मेरी गुजारिश है कि मेरी 2 लड़की है, बड़ी लड़की का नाम सुहाना है, छोटी लड़की का नाम केकता। खालिद भाई आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता यानी हल्की है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, ज़रा बुलंद आवाज़ से फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप। मेरी 2 लड़की हैं। जी नाम बताइए। बड़ी लड़की का नाम सुहाना है, छोटी लड़की का नाम केकता। कहकशा नाम के बारे में जानना चाहता था। और दूसरा ये है कि मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ, मुझे मौलाना साहब से एक बार मुसाफा करना है, तो कोई हो सकता है ऐसा कुछ जुगाड़ रखता। जी ठीक है, इंशाल्लाह इस बारे में भी गौर करेंगे। एक बार नाम मैं दोहरा रही हूँ, आप सुन लें। बड़ी बच्ची का नाम आपने सोहना बताया, सुहाना और कहकशां, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया खालिद भाई। इंशाल्लाह सवाल शादी के लिए था, रिश्ते नहीं आते। जी जी वो सवाल है सिराज साहिबा का, जिससे उन्होंने कहा कि बच्ची पर लोग असरात बताते हैं, रिश्ते नहीं आते, और अच्छे रिश्ते के लिए कोई दुआ बता दीजिए। असल में पहले तो मैं जहन खोल दूं कि रिश्ते जो हैं वो सब अल्लाह के हाथ हैं, असरात से कोई रिश्ते नहीं रोक सकता। 100 जादूगर मिलके भी अगर ये चाहें कि इनकी बच्ची का रिश्ता रोक दें तो रोक नहीं सकते, अगर अल्लाह चाहे करना। तो रिश्ते के लिए जो कुरान मजीद में एक सूरत है सूरह फुरकान, उसकी 54 नंबर आयत का विर्द करेंगे इंशाल्लाह 21 बार 31 बार, तो उससे इंशाल्लाह इनकी बच्ची के रिश्ते आने लगेंगे। और ये जहन से निकाल दें कि किसी ने रिश्ते बंधवा रखे हैं या किसी ने कोई जादू करा रखा है, बल्कि अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, 5 वक्त की नमाज़ें अपनी दुरुस्त रखें और ये आयत पढ़ें इंशाल्लाह ताला, तो उनकी बच्ची के रिश्ते आने लगे। सूरह फुरकान की आयत नंबर, सूरह फुरकान की आयत नंबर 54 जी। उम्मीद है कि सिराज 19वें सिपारे में है, 19वें सिपारे में सूरह फुरकान की आयत नंबर 54। सिराज साहब उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा और तलाश करें, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा आपको, वो वजीफ़ा भी मिल जाएगा और बेटी के लिए अच्छा रिश्ता भी इंशाल्लाह। अब नसरुद्दीन साहब ने फरमाया 18-19 साल का लड़का है, 3 साल से वो क्रिकेट के लिए गया हुआ है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही है उस फील्ड में जिसमें वो अपने लिए अपना फ्यूचर तलाश करना चाह रहे हैं। असल में पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूं, जो नसरुद्दीन साहब कह रहे थे कि मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, भाई ये सब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। अल्लाह को हमारी किसी इबादत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी इबादतों को अल्लाह की ज़रूरत है। तो ये बात आप ना कहा करें, बल्कि अल्लाह से इन इबादतों के बाद दुआ किया करें, बल्कि ये ना कहें कि मैं ये कर रहा हूँ और ये काम नहीं हो रहा। अल्लाह को पता है कब क्या करना है। हो सकता है आपके बच्चे को अल्लाह ने किसी बड़े एक्सीडेंट से, किसी बड़े हादसे से बचाया रखा हो, अभी उस क्रिकेट में जाने के बाद अभी उसका वक्त ना आया हो। आप सिर्फ अल्लाह से खैर की दुआ करें और ऐसे वक्त में आपका बच्चा कामयाब हो जो उसके ईमान की, इज़्ज़त की और सेहत की और ज़िंदगी की हिफाजत अल्लाह की तरफ से लिखी हुई हो। जायज़ मुरादें पूरी कराने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सूरह नमल है कुरान में 20वें पारे में, उसकी 62 नंबर आयत का विर्द करें आप, इंशाअल्लाह ताला आपकी जायज़ मुराद पूरी होगी। जी सूरह नमल की 62 नंबर आयत। जी तो ये नसरुद्दीन साहब आपके सवाल का जवाब था। नौमान भाई आप बताइए सवाल क्या है। नौमान भाई आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, जरा बुलंद आवाज में फरमाइए क्या कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं बस घर वाले इससे राजी नहीं हो रहे कि उसकी बिरादरी चेंज है बस, और वरना कोई। जी नौमान फोन लाइन पे रहिएगा। आपके घर वाले तैयार नहीं है क्या? लड़की के घर वाले राजी हैं? जी वो राजी। लड़की के घर वाले इस रिश्ते से खुश हैं, रजामंद हैं इस रिश्ते के लिए? जी बिल्कुल जी। तो उधर से रजामंदी है, यहाँ से नहीं है, यही बात है? जी जी। क्या किया जाए? असल में लोग ये बात समझते नहीं। कुरान एक हदीस पाक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि अल्लाह की रज़ा जो है वो माँ बाप की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। तो इन साहब को ये चाहिए कि अपने माँ बाप को राज़ी करें और इनकसारी या राजजी के साथ गुस्सा या ज़िद या भागना या सुसाइड की धमकी देना नहीं, बल्कि उन्हें समझाएं इस बात को कि इस्लाम में बिरादरी नहीं है। कलमे के शरीकों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बहुत सारे कबीलों में शादियाँ की हैं, अलग अलग बिरादरियों में, बल्कि ईमान में ला के लोगों को निकाह पढ़ाया है। फिर बाद में 11 बीवी हुज़ूर ने रखी है, सब अलग अलग कबीले की थी।
تو کیونکہ ہمیں معلومات نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس طرح کی جو اڑنگے اڑاتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں. ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی خواہشوں کا احترام کریں. اگر بچی نیک ہے, وہ لوگ شریف ہیں, چاہے کسی برادری کے ہوں, حضور نے جو کرائیٹیریا دیا ہے رشتوں کا وہ نیکی اور دین دیا ہے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ پیسے والا ہے نہیں ہے, خوبصورت ہے نہیں ہے, پڑھی لکھی, ذات برادری. یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں صرف کرائیٹیریا جو ہے وہ دینداری اور نیکی ہے. اگر بچی دیندار ہے تو بالکل. کوئی دعا بتائیے کہ نعمان کا مسئلہ حل ہو جائے. نعمان کے مسئلے کے لیے جو ہے وہ سورہ قصص کی جو آیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی, سورہ قصص کی 24 نمبر آیت ہے, آخری اس کا جو حصہ ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ. بالکل, یہ تو نعمان صاحب کے مسئلے کا حل ہوا. لیکن نعمان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ چونکہ والدین نے دنیا دیکھ رکھی ہوتی ہے, ان کے تجربے بہرحال جو ہے وہ مقدم رکھنے چاہیے. تو والدین کی خوشی سے ہی کوئی قدم اٹھائیں, اللہ سے ضرور دعا مانگیں, طلب کریں اس سے اس کی رضا, لیکن ساتھ ساتھ والدین کی رضا. ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ کہ ان کی خواہش پوری ہو, لیکن اپنے والدین کو خوش رکھیں. بالکل, ان کی مرضی کے تبھی اللہ راضی ہوگا. تبھی اللہ, جب ہی ان کی اصل میں لو میرجز اسی لیے زیادہ ناکام ہوتی ہیں کہ اس میں ماں باپ راضی نہیں ہوتے, ان کے خلاف جا کے لوگ شادیاں کرتے ہیں. بالکل. جاوید ارسنا, جاوید بھائی بتائیے سوال کیا ہے. جاوید صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ثنا آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ثنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. ثنا سوال بتائیے. جی شگفتہ, مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے, ایک بہن کا بھی سوال آیا تھا شوہر کے بارے میں, بالکل سیم ویسے ہی سوال ہمارا بھی ہے کہ میرے شوہر پتہ نہیں کیا ہو گیا, 1.5 سال سے کسی مطلب گھر کی ہی لڑکی چچا کی بیٹی تھی صبا نام اس کا, اس کی وجہ سے اتنا پریشان گھر میں کر لیا, جبکہ اس کی شادی وادی بھی ہو گئی ہے. اور جب اس سے پوچھو ان سے تو یہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی ہماری ہمدردی ہے, یہ ہے وہ, لیکن گھر ہمارا برباد ہو رہا ہے سمجھ لیجیے. اور ہمیں شوہر سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں. ہم کیا کریں, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. مولانا صاحب سے کوئی ایسی تجویز پوچھیے جس سے ان کے دل میں ہماری پہلے ایسی محبت بچوں سے سب کچھ ہو جائے. بہت طبیعت پریشان ہو گئی ثنا. ایک چھوٹا سا سوال اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں. آپ نے اللہ کی محبت سے زیادہ شوہر کی محبت کو دل میں جگہ دے دی تھی کیا؟ نمازوں کی پابندی یا اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہوتی تھی؟ اللہ کا شکر ہے, نمازوں کے بھروسے تو بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سے ہی بہت بڑی بات. تو تھوڑا سا صبر کیجیے, اللہ ضرور راہیں جو ہے ہموار کرے گا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کا سوال ہوگا اور مجاز صاحب کی رہنمائی. ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ثنا کا سوال, مجاز صاحب کی رہنمائی. کیا کیا جائے مجاز صاحب, بیوی کو حد درجہ محبت ہے اور شوہر جو ہے وہ اس کا دھیان کہیں 1.5 سال سے ادھر ادھر ہو گیا ہے. اصل میں جو معاشرہ اس ٹائم یہ ہے, یہ مردوں کا معاشرہ ہے. اس میں عورتوں نے بھی بہت زیادہ نیگیٹو رول پلے کیا ہوا ہے. وہ نہیں سمجھتی کہ ہماری ایک بہن کا گھر تباہ ہو رہا ہے اس میں, اور مرد بھی اپنا حاکم ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان بہن کو یہ چاہیے کہ تو یہ رونا دھونا بند کریں اور اپنے ہسبینڈ سے لڑنا بند کر دیں. بالکل ان پہ الزام لگانا, اگر یہ آنکھوں سے بھی دیکھ لیں تب بھی ان پہ الزام نہ لگائیں, بلکہ ان کی شکایت اپنے مائکے میں, اپنی سسرال میں سب سے بند کر دیں. ان کی شکایت صرف اللہ سے کریں, جو لوگوں کے دل بدل سکتا ہے. 2 نفل پڑھیں اور اپنے اللہ کے آگے گر گئیں کہ اللہ ان کے نکاح میں آپ نے مجھے دیا ہے, مجھے ان کے مطلب کر دیجیے, انہیں میرے مطلب کر دیجیے. دوسرے, اپنے میک اپ کا خیال, اپنے کپڑوں کا خیال, اپنے چہرے کا خیال خود اپنی طرف رجھائیں اپنے ہسبینڈ کو. ہمارے ہاں کی عورتوں کو میں دیکھتا ہوں کہ شادی ہونے کے بعد بالکل بے فکری سی ہو جاتی ہے, نہ اپنا خیال رکھتی ہے, نہ کپڑوں کا, نہ جب گھر میں ہسبینڈ گھستا ہے تو پیلے کپڑے, ہلدی کے بدبو آ رہی ہوتی ہے کچن سے آنے کے بعد. تو ہسبینڈ جو ہے وہ کیا کرے, اس لیے اپنے ہسبینڈ کو یہ دین ہے. میں بتا رہا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو اپنی طرف لانا چاہتی ہیں تو آپ الزام نہ لگائیں, بلکہ اس کی آخرت بچائیں. کیونکہ اگر وہ خدا نخواستہ اس حالت میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سیدھے ان کے لیے معاملہ خراب ہوگا آخرت میں. اور ناجائز تعلق ختم کرانے کے لیے قرآن میں سورہ مائدہ کی 100 نمبر آیت کا ورد کریں آپ, اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہو. سورہ مائدہ 5ویں سورت ہے قرآن میں, اس کی 100 نمبر آیت کا ورد کریں. اور ایک یا ولی 1000 بار پڑھ کے جمعرات کی رات کو اللہ سے دعا کریں اپنے ہسبینڈ کے لیے. ایک یا ودود پڑھ کے چینی اور نمک دم کر دیں کسی بھی دن مغرب کے بعد 1000 بار یا ودود پڑھ کے, اور وہ آپ بھی کھائیں انہیں بھی کھلائیں. تو آپس میں انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی اور اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ریحانہ اور گلشن صاحبہ. ریحانہ صاحبہ پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے. ہلو جی ریحانہ صاحبہ سن رہے ہیں, فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहाना, सलाम पहुंच गया, कलाम पर आइए, क्या सवाल है आपका? मैं अपने बच्चे के नाम से मैंने पूछना चाहती हूँ। नाम बताइए। एक का नाम है अरसलान हम्म, और मोईन और मोईन। एक का नाम है जीनत। दूसरा नाम जो आपने बताया मोइन या मोईद? मोईन। मोईद, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। गुलशन साहब आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये पूछना था कि मेरे शौहर का 3-4 महीने से काम बंद है, काम में जा नहीं रहे हैं और काम में वो काम के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। घर में बहुत परेशानी है और मैं क्या बोलते दुआ करती हूँ, नमाज भी पढ़ रही हूँ और मेरे शौहर लेकिन पढ़े हुए नहीं हैं, तो उनके लिए मैं कुछ दुआ कर सकती हूँ क्या, ये मेरे को पूछना है। ठीक। और मेरा बेटा जो है पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसके लिए पूछना है, बहुत धीरे लिखता है वो। और मेरी बहन के रिश्ते के लिए पूछना है कि मेरी बहन 35 साल की हो चुकी है और उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ठीक है गुलशन, आपके तीनों सवाल पहुंच गए। शौहर के काम के लिए हमारे पास वक्त कम है, मुझे साहब अगर इख्तिसार के साथ उन सबकी रहनुमाई हो जाए तो बहुत अच्छा। ये कारोबार के लिए तस्बीहात पढ़ें 300 बार, तो या वली या वाली या नसीर, या वली या वाली या नसीर 300 बार, और या जल जलाल वल इकराम 300 बार। ये पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह कारोबार उनका सेट हो जाएगा। बच्चे की पढ़ाई का मामला ये है कि सूरह फातिहा पढ़ के 7 बार बिस्मिल्लाह के साथ हर बार, और सौंफ पे दम करें, अपने बच्चे को सौंफ खिलाएं, और रब्बी ज़िदनी इल्मा की तस्वीर उस बच्चे को पढ़ाएं, चाहे कितना ही छोटा बच्चा हो, पढ़ लेता है 3 लफ्ज़ हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे का दिल भी लगने लगेगा पढ़ाई में और वो याद भी बहुत अच्छा होने लगेगा। अब रिश्तों का मसला यहाँ भी है, उम्र काफ़ी हो चुकी है, शायद 35 साल। हाँ, रिश्ते के लिए उस बच्ची को ये चाहिए कि असर के बाद सलाम फेरने के बाद वहीं बैठी रहे और 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़ के अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करें। असर की नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद ना बात करनी ना उठना, 300 बार या रहमान या रहीम या अल्लाह, 40 बार आयत करीमा पढ़ने के बाद अल्लाह से सिर्फ एक दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे लिए नेक रिश्ता अपनी पसंद का भेज दिए। जी, अब कुछ नाम है, अगर जल्दी ये 40 दिन का अमल है बहन। हाँ, 40 दिन करना है। कुछ नामों के बारे में जानना चाह रहे हैं। शादान शाद से बना है, खुशी से ताल्लुक है। सानिया जी, सानिया जो है वो खूबसूरती का मामला होता है कि खूबसूरत जैसे किसी चीज को खूबसूरती की तरफ कहकशा गैलेक्सी को कहते हैं। जो सुहाना जी, सुहाना भी जैसे मौसम को कहते हैं, सुहाने मौसम को, मतलब दिल खुश करने वाली चीज जी। कुछ नाम है जो इसे कल शामिल करेंगे इंशाल्लाह। रेहाना साहिबा आपके सवाल या बच्चों के नाम के बारे में इंशाल्लाह कल बताएंगे। सना साहिबा का ये कहना हमें बहुत अच्छा लगा कि बहन अल्लाह की मोहब्बत और नमाजों के सहारे ही तो बैठे हैं। या यकीनन आपने बहुत बिल्कुल सही फरमाया, यही आपका हथियार है, यही आपका जरिया है, यही आपका वसीला है। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में यही कहा है कि वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, एक तरफ सब्र करें, दूसरी तरफ नमाजों का दामन मजबूती से थामे, चाहे वो 5 वक्ता नमाजें हों, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो। वो वक्त ऐसा होता है जब रब्बे करीम खुद सदा देता है, खुद कहता है कि है कोई मांगने वाला, है कोई फरियाद करने वाला जिसकी मैं फरियाद रसी करूँ, है कोई मांगने वाला जिसकी मैं मुराद पूरी करूँ, जिसकी तलब, जिसकी आरज़ू, जिसकी ख्वाहिश पूरी करूँ। तो वो वक्त अल्लाह से लौ लगाने का है। आप सब नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह पर ईमान रखें और सब्र का दामन कभी ना छोड़ें। इसी पैगाम के साथ इजाज़त तलब करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए मिलकर हम मजाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए और तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए। जज़ाकल्लाह।